Hello students, this is Vivek from Shiv Jyoti Educational Group. So today we'll start with a new chapter which is chapter number 8, gravitation. Okay, so gravitation, as you already know, gravitation, you all have a feel of it. What is gravitation, what is gravity? You have studied in the previous classes. So basically we will study gravitation with a bit more detail in this class. Okay, but before we proceed further, let's go through some of the topics which are deleted by CBSE just for this particular session. Okay, so Kepler's laws of planetary motion, you can see Kepler's laws of planetary motion, okay, and acceleration due to gravity. These are the two topics which have been deleted from your syllabus, from your current syllabus, just for this particular session by CBSE. Okay, so we'll cover all the topics apart from this, and some of the details I'll also provide you about these topics wherever necessary, like if it is related to the content. Okay, so for right now, let's proceed with the chapter which is gravitation. Okay, so the first thing which comes into picture is Newton's law of gravitation. Now Newton's law of gravitation means actually gravitation is a force which acts on any two bodies or every body, but like if there is any body present in the universe, gravitation would be acting on it. Okay, so point is Newton's law of gravitation is about the force of gravitation between two bodies separated by some particular distance r or d. In some books you might find the distance as r, and in some books you might find the distance as small d. So it's the same thing. Newton's law gives a relationship between the force exerted between two bodies, force of gravitation exerted between two bodies when placed at a distance of let's say r, small r or small d. So as the statement says, the gravitational force acting between two point objects is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Understand, product of masses, proportional to the product of masses. Product of masses means एक बॉडी का मास m1 है, एक का m2 है. So product of masses would be m1 m2 and the distance between them would be small r. Okay, so the law says that the gravitational force is proportional to the product of their masses. Product of masses means m1 m2 and also inversely proportional to the square of the distance between them. This is also known as inverse square law. Means like if we say that the force is inversely proportional to r square, the square of the distance between them, so it would be like g or f, the force is proportional to 1 by r square. Okay, remember inverse proportion means 1 by. Okay, let's see it in detail. Here it is, f is directly proportional to m1 m2, f is inversely proportional to r square, this is r square. Okay, so inverse proportion matlab ये घटेगा तो ये बढ़ेगा. If this would increase, this would decrease. If this would decrease, this would increase. Okay, if this would increase, this would decrease. If this would decrease, this would increase. This is the relation. And direct proportion means जितना ज़्यादा mass उतना ज़्यादा force. Okay, so इन दोनों को combine करें तो we'll get f is directly proportional to m1 m2 by r square. Okay, and you remember that the proportionality sign can be removed by using a constant. Okay, so this is f equals to g m1 m2 upon r square. So this is the Newton's law of gravitation. Now what is capital G over here? It is universal gravitational constant. Okay, this is universal gravitational constant. This is constant, so it means its value would remain constant everywhere. So this is the value 6.67 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. अब यूनिट कैसे मिली इसकी? कैपिटल जी की यूनिट चाहिए, आर स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर. ओके, सो इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ओके, एंड दिस इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स. The value of G is independent of the nature and size of the bodies as well as the nature of the medium between them. It is same basically everywhere in the world, it would be same, capital G. This is universal gravitational constant. Okay, great. Next thing is acceleration due to gravity. Now this has been removed from your syllabus, I understand, but some points about these would be useful to you while you would be solving the numerical. So let's go through it. What is acceleration due to gravity? See,
the uniform acceleration produced in a freely falling object due to the gravitational pull of the earth is known as acceleration due to gravity. Understand, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल में है, एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, उसको ड्रॉप कर दिया, ओके, तो ये फ्री फॉल में है, लेकिन ये नीचे क्यों गिरा? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ओके। तो इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा दैट वुड बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ना उसमें। सो पॉइंट इज the uniform acceleration produced in a freely falling object due to the gravitational pull is known as acceleration due to gravity. It is denoted by small g. Its unit is meter per second square, जो acceleration की होती है. It is a vector quantity and its direction is towards the center of the earth. This is a basically common thing, okay. Acceleration vector quantity होती है, you already know about it. So the value of g is independent of the mass of the object which is falling freely under gravity. You can understand, like you take a tennis ball, drop it from a tower or a building, okay, you take a rock, a very big rock, drop it from the building, the acceleration due to gravity which would be acting upon it would be same, okay, you know, everything would come down only with same acceleration, that is small g. Then we have the value of g, basically generally जो हम लेते हैं अर्थ पे, it is 9.8 meter per second square, okay. And this value changes, like moon पे अलग है, moon पे कितनी है? It is about 1/6 of that on the earth, that is g by 6, and it is about 27 times of that on the earth. sun पे कितना है? The sun, on the sun it is about 27 times of that on the earth, जबकि moon पे it is 1/6, यानी कि moon पे है g by 6 और sun पे कितना है? 27g, 27 times, okay. So this is acceleration due to gravity which is small g. अब इसकी वैल्यू क्या होती है एंड कैसे कैलकुलेट होती है ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैसे? F, जब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्थ है और एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम स्मॉल m मास का, तो उनके बीच में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ये फोर्स होगा Gmm/r²। नाउ हमें मालूम है कि व्हेन अ बॉडी इज इन फ्री फॉल, तो बेसिकली जब वो फॉल हो रही है एंड ग्राउंड पे रखी हुई है, मान लो जैसे वो ग्राउंड पे गई, व्हेन अ बॉडी इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, तो वो क्या फोर्स लगाती है? ग्राउंड पे mg लगाती है नीचे की तरफ, ओके। सो इफ अ बॉडी इज लाइंग ऑन अ ग्राउंड, ओके, एंड तो अर्थ और उस बॉडी के बीच में ये फोर्स होगा, और वो फोर्स लग कितना रहा है? mg। अगर कोई बॉडी लाइक ग्राउंड पे रखी हुई है तो क्या होगा? वो कितना फोर्स लगा रहा है ग्राउंड पे? mg। और बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कितना हो? Gmm/r² होगा, फोर्स बिटवीन देम, ओके। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये और mg बराबर होना चाहिए, ओके। सो यही हमने किया यहाँ पे, mg इक्वल्स टू Gmm/r², ओके। इन दोनों को इक्वेट किया, मास मास कैंसल आउट एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ g which is capital G into capital M upon r², okay. What is this? Gm/r², gravitational constant, mass of earth and radius of earth का square. Getting the logic? अब इसमें क्वेश्चन आते हैं कई दिमाग में कि लाइक अगर हम अर्थ और सॉरी, अगर हम अर्थ और एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस जो आएगा दैट शुड बी सम स्मॉल आर समथिंग। रेडियस ऑफ अर्थ क्यों लिया? इमेजिन अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक कोई छोटा मास रखा हुआ है, ओके, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, रेडियस ऑफ अर्थ इज लाइक इन किलोमीटर्स, ओके, दैट इज ऑल्सो इन लेट्स से इन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, ओके। तो उसके सामने उस ऑब्जेक्ट का जो होगा डिस्टेंस उस अर्थ से, वो कितना सा होगा? बहुत छोटा होगा। सो दैट वुड नॉट वैल्यू एक्चुअली, वी कैन नेग्लेक्ट इट एंड द टोटल डिस्टेंस जो हम ले सकते हैं वो आर ले सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ, ओके। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये लिया है। तो जी की वैल्यू इज, अर्थ पे बात करें तो इट वुड बी Gm/r², मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। बट अगर कहीं और वैल्यू निकालनी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो यहाँ पे Gm/ ये जो r होगा ये होगा डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये देखो, when a body is at a distance r from the center of the earth, that is small r, then small g equals to Gm/r², okay. यहाँ पे लिख रखा है mass of the earth is 6 into 10 raised to the power 24 kilograms and radius of the earth, ये देखो 6.38 into 10 raised to the power 6 meters। अब 10 raised to the power 6 meters मतलब 10 की पावर 3 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ पे। You can understand it is like 6,380 के आसपास है kilometers, so you can understand how large value is it, okay.
सो दैट्स व्हाई जब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वी कैन डायरेक्टली टेक द डिस्टेंस टू बी द रेडियस ऑफ द अर्थ. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल g, gm/r². नेक्स्ट वी हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मींस whenever any body is pulled up against the force of gravity, तो उसमें हमें वर्क करना पड़ता है उसको ऊपर लाने में. कोई बॉडी ग्राउंड पे रखी हुई है, उसको उठा के लिफ्ट करके अगर हम एक पर्टिकुलर हाइट पर रख रहे हैं तो उसमें हमारे को वर्क करना पड़ता है. दैट वर्क इज बेसिकली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोजीशन पे डिपेंडेंट होती है पोटेंशियल एनर्जी. सो द सेम इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम. It says gravitational potential energy of any object at any point in gravitational field is equal to the work done in bringing it from infinity to that point. ये ध्यान रखना, आपने 10th में जब पोटेंशियल पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां पे ये चीज आई होगी कि एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लाएंगे तो उसमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. सेम इज दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. द अमाउंट ऑफ एनर्जी spent कब, when any object at any point in any gravitational field, so when we have to bring it from infinity to that particular point, मतलब ये gravitational field है, उसमें किसी particular point पे अगर आपको कोई object उठा के लाना है तो the energy of that particular object is what is stored in terms of the work done. मतलब उसको उस फील्ड में लाने में जितना वर्क डन लगा है वो बताता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सिंपल डेफिनेशन इज द एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. रिमेंबर दिस पॉइंट, ये काम आएगा डेरिवेशन में. इन्फिनिटी से ला रहे हैं हम, ठीक है. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल U एंड जनरली इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m बाय R, वेयर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास, ये दो मासेस हैं, ओके, कैपिटल M एंड स्मॉल m. यहां जरूरी नहीं है कि ये अर्थ का ही मास हो. अगर हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए अगर कहीं पे भी, तो ये उनके भी मास हो सकते हैं. ओके, अर्थ का कब लेना है, क्या होगा, ये हम आगे कैलकुलेशन में देखेंगे. ओके, एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, नाउ ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड. नेगेटिव साइन ये बताता है बेसिकली that the gravitational potential energy decreases with increase in distance. Understand, gravitational potential energy decreases with increase in distance. Increase in distance मतलब अगर ये distance हम बढ़ाएंगे, this is denominator, इसको हम बढ़ाएंगे तो ये overall value कम होगी. overall value कम होने का मतलब क्या हुआ, understand, overall value कम होने का मतलब क्या हुआ, पीछे नेगेटिव साइन लगा हुआ है. नेगेटिव वैल्यू जितनी कम होती जाएगी तो क्या होगा, अगर इसको हम बढ़ा रहे हैं, दिस इज डिनोमिनेटर, अगर इस डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हैं, फिर इंक्रीजिंग द डिनोमिनेटर, तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीजेस. बट ये ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो रही है बट पीछे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो बेसिकली माइनस का साइन लगा हुआ है तो जितना छोटा माइनस का साइन उतनी बड़ी चीज. अंडरस्टैंड, -5 एंड -2, -2 इज बिगर देन -5, -2 इज लार्जर देन -5. गेटिंग द लॉजिक. सो अगर ये वैल्यू पूरी की पूरी -5 से -2 आ गई, इसका मतलब ये बढ़ गई. सो बेसिकली R को जैसे जैसे हम कम करेंगे, इफ वी डिक्रीज दिस R विच इज इन डिनोमिनेटर, तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ दिस GMM बाय R वुड इंक्रीज. एंड अंडरस्टैंड, R को डिक्रीज करेंगे तो ये GMM बाय R की ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी. बट नेगेटिव साइन लगा हुआ है, यानी कि -2 से -5 जा रहे हैं हम, तो बेसिकली ओवरऑल वैल्यू तो डिक्रीज ही हुई, नेगेटिव वैल्यू. अंडरस्टैंड. सो इसको जैसे जैसे कम किया, ओवरऑल वैल्यू क्या हुआ, इसको कम किया तो ये वैल्यू तो बढ़ी लेकिन ओवरऑल वैल्यू तो कम हो गई. गेटिंग द लॉजिक एनर्जी की. सो पॉइंट इज दिस नेगेटिव साइन शोज दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस. एक हम R लेते हैं, लेट्स से एक हाइपोथेटिकल वैल्यू, जस्ट इमेजिन इट योर माइंड, R1 और R2 ले लेते हैं, ठीक है. वेयर R1 को हम लेते हैं 10 और R2 को हम लेते हैं 100. R1 को हमने लिया 10 एंड R2 को हमने लिया 100. जब R1 10 है तब इसकी जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी एज कंपेयर टू जब R हम 100 लेंगे. नीचे वाले R को बढ़ाया तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो गई ना. डिनोमिनेटर को बढ़ाया, इफ वी इंक्रीज द डिनोमिनेटर सो द ओवरऑल वैल्यू वुड डिक्रीज. गेटिंग द लॉजिक. सो ये वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज होगी,
सो R जब 10 है और R जब 100 है, क्या होगा? R जैसे बढ़ाया हमने 10 से 100, एनर्जी की वैल्यू तो डिक्रीज हुई। गेटिंग द लॉजिक? एनर्जी की R की वैल्यू बढ़ा रहे हो, यानी कि ओवरऑल वैल्यू, व्हाट इज हैपनिंग? ओवरऑल व्हेन एज वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ R, सो व्हाट इज हैपनिंग? ओवरऑल वैल्यू इज डिक्रीजिंग, एंड नेगेटिव में डिक्रीज होने का मतलब क्या है? इंक्रीज होना। ओके, गेटिंग द लॉजिक? So this you just need simply understand that this is the formula minus GMM by R. Okay, and this negative sign, what is it showing? that कि R को जैसे जैसे हम डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होगी. Like the negative sign shows that the gravitational potential energy decreases with increase in distance. इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, like it says that the energy decreases with increase in distance. Increase in distance का मतलब क्या है? लाइक अंडरस्टैंड, अट्रैक्शन की अगर हम बात करें, सी एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक लेट्स से एक ग्रेविटेशनल फील्ड है. ओके, नाउ एक ऑब्जेक्ट को अगर हमें, एक ऑब्जेक्ट है ये, लेट्स से ये एक पूरा डिस्टेंस है, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो यहां से लेके यहां तक एग्जिस्ट करती है. ओके, नाउ इफ वी आर ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू दिस ग्रेविटेशनल फील्ड इसी के आसपास से, तो मतलब इस ग्रेविटेशनल फील्ड पे ऑलरेडी इसका इन्फ्लुएंस है. ठीक है, तो यहां से लाके इसमें अगर ला रहे हैं हम, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? अंडरस्टैंड, यहां से लाके हम इस ग्रेविटेशनल फील्ड में रख रहे हैं तो जो वर्क डन होगा, एंड एक ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है वहां से लाके अगर हम इसमें रख रहे हैं, इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड में, किसमें वर्क डन ज्यादा होगा? ट्राई एंड एनालाइज, क्या होगा? किसमें वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा? ये तो ऑलरेडी यहीं पे है ना, मैग्नेटिक फील्ड के, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के आसपास ही है, इसको तो लाके यहाँ पे रखना है, बट एक को हम बहुत दूर से ला रहे हैं, किसमें वर्क डन ज्यादा होगा? ट्राई एंड अंडरस्टैंड. तो जिसमें ज्यादा वर्क डन होगा उसमें एनर्जी भी ज्यादा होगी. सो दैट्स द सेम कंसेप्ट. द नेगेटिव साइन शोज दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस. इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस. गेटिंग? मीन्स जो हम दूर से ला रहे हैं उसको तो हम बहुत स्पीड में भी ला सकते हैं, बट जो पड़ोस में है वो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस में है. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? वो इन्फ्लुएंस में है तो उसको लाने में हमें ज्यादा दिक्कत हो सकती है. इफ यू कैन रिलेट दिस, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, यू कैन रिलेट इट विद दैट, और नहीं तो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला दैट द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज माइनस GMM बाय R, वेयर M एंड M आर द masses, R is the distance between these masses. Okay? नेक्स्ट, दिस इज द डेरिवेशन. बेसिकली हमने बोला वर्क डन. वर्क डन किसमें? एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक. सो बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं दैट दिस एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन. कैसे? वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट dx, और वी नीड टू इंटीग्रेट. अब इसमें वी स्टडीड अबाउट दैट इलेक्ट्रिक दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? व्हेन वी ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तभी हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन में इन्फिनिटी टू R लिखा है. गेटिंग द लॉजिक? सो इन्फिनिटी टू R हम इंटीग्रेट करेंगे F डॉट dx को. F हम देख चुके, GMM बाय x स्क्वायर फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो वी जस्ट नीड टू इंटीग्रेट दिस होल थिंग. ओके, GMM वुड बी कांस्टेंट, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया. 1 बाय x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर dx फ्रॉम infinity to R. Okay, now what would be the integration of 1 by x square? Minus 1 by x, we need to put in the limits infinity to R, so it would become 1 by R minus 1 by infinity. और ये नेगेटिव साइन अभी बाहर रख देते हैं, तो 1 बाय आर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी हो जाएगा. 1 बाय इन्फिनिटी इज 0. ओके, सो इन शॉर्ट वी वुड गेट द रिजल्ट एज दिस, GMM minus 1 by r minus 1 by infinity, so we'll get minus GMM by r. So this is the formula for calculating gravitational potential energy. Okay, I'll just revise it for you again. इंटीग्रेशन किया, इन्फिनिटी से ला रहे थे ऑब्जेक्ट को, तो इन्फिनिटी से r इंटीग्रेशन होगा. वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट dx. F डॉट dx में F की वैल्यू हमने पुट करी GMM by x स्क्वायर फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड 1 by x स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया इन्फिनिटी से r. सिंपल, वी गॉट माइनस GMM by r. ओके, ये डेरिवेशन कई बार पूछते हैं एग्जाम में, सो जस्ट रिमेंबर. Next, the most important topic of this chapter is that you are going to learn about satellite. Satellite क्या होता है? Satellite अभी तक कभी भी नाम आता है तो you have a picture in mind कि हाँ ठीक है, weather forecast आता है, the place from where we are getting inputs, we are getting information about outside space, वो satellite होता है. So point is, yes, majorly those are satellites, but planets also have their own satellites. Okay, so we'll discuss about that. Now, what is a satellite basically? It is a heavenly body or a heavenly object which revolves around a planet. Okay, so any heavenly body which revolves around a planet is called a satellite.
Natural satellites are those heavenly bodies or objects which are not man-made and revolve around the earth. Okay, ये man-made नहीं है, natural है. Okay, जैसे आपने देखा होगा like we have moons, हम moons कहते हैं कि planets के moons होते हैं. So जैसे अर्थ का मून इज अर्थ के अराउंड मून गोल गोल घूमता है, तो मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ. ओके, सो नेचुरल सैटेलाइट्स वही हुए. आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं, लाइक हम बना के वहां पे स्पेस में भेजते हैं. सो दीज आर बेसिकली दोज हेवनली ऑब्जेक्ट्स विच आर मैन मेड एंड लॉन्च्ड फॉर सम पर्पसेस ड्यू टू विच दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. ओके, ये revolve around the earth, these revolve around the earth just to solve out your purpose. Either it might be weather forecast, or it might be the positions of certain places. It might be about any location related thing, and there are a lot of uses basically. So point is, artificial satellites and natural satellites, there are two types of satellites. Natural which are not man made, artificial जो हम बनाते हैं. Okay, artificial satellites are of two types: geostationary or parking satellites and polar satellites. Understand, geostationary और parking satellites, इन्हें parking satellites इसलिए कहा जाता है because these are basically at a specific position related to earth. ये हमेशा एक ही पोजीशन पर रहते हैं. जैसे जैसे अर्थ घूमेगी ये अर्थ के साथ घूमेंगे. बट इफ वी अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखा जाए तो जिस डायरेक्शन में ये अभी दिखेंगे आपको, बाद में भी उसी डायरेक्शन में दिखेंगे. इट वुड बी द प्लेस सीम्स टू बी फिक्स्ड, दैट्स व्हाई पार्किंग सैटेलाइट्स भी कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट वी हैव पोलर सैटेलाइट्स. पोलर सैटेलाइट्स आर दोज व्हिच आर एट पोल्स. ओके, लेट्स सी द डिटेल्स अबाउट दीज. A satellite which appears to be at a fixed position at a definite height to an observer on earth is called geostationary or parking satellite. Okay, fixed position. These satellites revolve around the earth in equatorial orbits. Equatorial orbits मतलब इक्वेटर. इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर का जो आसपास अगर कोई बॉडी चक्कर लगाए तो वो कहेंगे हम कि दैट इज इक्वेटोरियल ऑर्बिट. इक्वेटर, इट इज रिलेटेड टू इक्वेटर. अभी डायग्राम में देखेंगे हम. The angular velocity of the satellite is same in magnitude and direction as that of the angular velocity of the earth. जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे ये भी घूमेंगे साथ में, तभी तो हमें एक ही पॉइंट पे फिक्स दिखेंगे. गेटिंग द लॉजिक? जैसे जैसे अर्थ घूम रही है ये भी इसी के साथ साथ घूम रहे हैं. गेटिंग? सो अगर अर्थ अभी ए पॉइंट पे है, कंसिडर दिस टू बी ए सर्कल, तो अर्थ अगर ए पॉइंट पे है, सैटेलाइट भी ए पॉइंट पे है. अर्थ घूमी बी पॉइंट पे है, अर्थ सैटेलाइट भी बी पॉइंट पे. अर्थ घूमी सी पॉइंट पे है, सैटेलाइट भी सी पॉइंट पे. गेटिंग? सो दिस इज हाउ इट moves. Okay, so these satellites are used in communication purposes. Okay, INSAT 2B and INSAT 2C are geostationary satellites of India. You just need to remember these. Okay, these are good examples and knowledge is available in that. Okay, next ये diagram है, you can understand over here equatorial axis, like ये equator है तो ये हुआ इक्वेटोरियल एक्सिस. ओके, यहाँ इसी एक्सिस पे रिवॉल्व करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स. एंड पोलर जो होंगे वो पोल्स पे होंगे, नॉर्थ एंड साउथ. इसके बारे में कुछ डिटेल है, यू शुड अंडरस्टैंड कि हाइट कितना होता है. हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस वुड बी 36,000 किलोमीटर्स. रेडियस ऑफ ऑर्बिट 42,400 किलोमीटर्स. टाइम पीरियड इनका 24 आवर्स ही होता है, सेम एज अर्थ. ऑर्बिटल वेलोसिटी, अभी एक कंसेप्ट आएगा जो हम आगे देखेंगे, इट इज 3.1 किलोमीटर्स पर सेकंड. एंड एंगुलर वेलोसिटी तो वही है जो अर्थ की होती है, 2 पाई बाय 24. 2 पाई क्यों? अर्थ पूरा एक 360 डिग्री कवर कर लेती है ना 24 आवर्स में. ओके, सो इसलिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका वो कितना हुआ? 2 पाई. सो दैट्स व्हाई 2 पाई बाय 24, दैट इज 12 रेडियन, पाई बाय 12 रेडियन पर आवर. ओके, getting the logic? So this is about geostationary satellite. Next we have polar satellites. These are those satellites which revolve in polar orbits around that. Polar मैंने समझाया poles के about. Okay, a polar orbit is that orbit whose angle of inclination with the equatorial plane of the earth is 90 degree. ये रहा equator. Okay, ये रहा equator and कुछ इस तरह से poles होंगे. ये अगर equator है तो poles कुछ इस तरह से होंगे. तो ये equatorial है, ये equatorial plane हो गया. तो जो polar plane होगा वो ऐसे होगा, perpendicular होगा ना इसके. Getting the logic? So a polar orbit is that orbit whose angle of inclination with the equatorial plane of the earth is 90 degree. These satellites are used in forecasting weather, studying the upper region of the atmosphere, in mapping etc. इसमें polar satellites use होते हैं. ठीक है, PSLV series satellites are polar satellites of India. ये examples हैं, you should know about this, कैसे क्या क्या चीजें होती हैं.
नेक्स्ट द कंसेप्ट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी से पढ़ने से पहले यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज एन ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट इज बेसिकली जैसे ये अर्थ है, अर्थ के आसपास अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है, सो दिस बेसिकली द होल पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट, अ पर्टिकुलर ऑर्बिट और अ पर्टिकुलर पाथ जिसमें सैटेलाइट घूमता है। ओके, सो व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इज द मिनिमम वेलोसिटी required to put the satellite into a given orbit around the earth. Understand, एक minimum velocity required to put the satellite into a given orbit around the earth. Orbit बहुत सारे पास वो हैं earth के आसपास, means a lot of things are rotating, revolving around the earth. So सब अपने अपने path पे travel करते हैं. जैसे the best example would be about planets around in the solar system. What happens is सन के अराउंड हर कोई घूम रहा है, बट पॉइंट इज एवरी प्लैनेट हैज इट्स फिक्स्ड ऑर्बिट, वो उससे बाहर नहीं आता। उसी तरह से इफ वी नीड टू अंडरस्टैंड द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, सो बेसिकली इट इज द पाथ इन विच द सैटेलाइट रिवॉल्व्स। अब इस पाथ में किसी भी सैटेलाइट को पुट करने के लिए the velocity which we need is called orbital velocity. Okay, what happens is when any object revolves, तो एक centripetal force लगता है अंदर की तरफ उस ऑब्जेक्ट पे, और कुछ फोर्सेस बाहर की तरफ भी लगेंगे। सो वी नीड टू मैनेज देम जिस तरह से जिस के बाद वो रिवॉल्व कर पाए। ओके, वी विल अंडरस्टैंड दोस। द सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज mv²/r. वी हैव डन इट इन रोटेशनल सर्कुलर मोशन के mv²/r इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो तरह के फोर्सेस होते हैं, सेंट्रिपिटल टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर। ओके, सो mv²/r स्मॉल r। नाउ स्मॉल r, मान लो ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस इज कैपिटल R और ये रहा सैटेलाइट। ओके, ये कुछ h दूरी पे है अर्थ से, सो व्हाट वुड बी दिस स्मॉल r की वैल्यू? r+h। ओके, so we are substituting it over here, mv²/r+h, where v0 is the orbital velocity. Now the gravitational force between the earth and the satellite, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, which would be gmm/r². r small r means r+h का स्क्वायर। Now for the stable orbital motion, इन दोनों फोर्सेस का बैलेंस होना जरूरी है। This is what I was talking about, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ और अट्रैक्शन फोर्स बाहर की तरफ। Getting the logic? ये दोनों जब बैलेंस रहेंगे तभी बॉडी घूम पाएगी। Understand? So इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे, so we'll get v0 equals to capital gm/r+h का रूट, under root of gm upon r+h according to this calculation. So since the acceleration due to gravity, ये मैंने बोला था फॉर्मूला याद रखने के लिए, small g equals to gm/r². So we need to find out the value of gm over here. So gm की वैल्यू हो जाएगी small g into r², वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे gm की जगह पे। So it becomes small g into r² upon r+h. Okay, so you need to remember this formula for orbital velocity. It is under root of gr² upon r+h. Now if this h is negligible, अगर 100-200 किलोमीटर ही दूर है सैटेलाइट अर्थ से, तो we can neglect that distance. Why? अर्थ का रेडियस इट इज इन किलोमीटर, 6000 किलोमीटर के आसपास, एंड ये h जो है इट इज इन 100 मीटर्स, 100-200 मीटर्स, तो we can neglect it. Okay, so you can use r in place of this r+h. Okay, तो अगर r यूज करते हैं तो ये r और ये एक r और ये एक r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? अंडर रूट gr. So if the satellite is at a height of few hundred kilometers, that is let's say 200 kilometers, then r+h could be replaced by r, capital R. So we will get the v0 as under root gr. ये हो जाएगी orbital velocity. Getting? So just remember the formulas. ये formulas के derivations हैं, you can easily understand. वही बस दो forces निकाले हमने, दोनों forces को equate किया and we got v0 equals to this, and इसमें हमने g की वैल्यू, gm की वैल्यू यहाँ पे substitute कर दी, which is gr². इससे हमें फॉर्मूला मिला under root of gr² upon r+h. Okay, and अगर सैटेलाइट क्लोज बाय है तो r+h को हम r से रिप्लेस कर सकते हैं, we'll get under root gr. Okay, great. Okay, next we have time period of a satellite. Now what do you mean by time period? Time period, ये सारी चीजें आपको सर्कुलर से रिलेट लग रही होंगी, सर्कुलर मोशन में you have gone through these. Okay, so time period is basically कितने टाइम में it completes one revolution. Okay, so how it is calculated? Time period, circumference of the orbit upon orbital velocity. This is quite relevant, you can understand it. मैंने क्या कहा, कितनी देर में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ? रेवोल्यूशन मींस व्हाट? एक पूरा सर्कुलर राउंड, उसका लेंथ कितनी होती है? 2πr. ओके, सर्कमफेरेंस. सो
टाइम क्या होता है? टाइम इज सर्कमफेरेंस यानी कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. ओके, सो सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी. ओके, दैट इज 2 पाई स्मॉल r अपॉन v नॉट. नाउ स्मॉल r की वैल्यू हमने देखी थी पीछे, इट वाज r प्लस h, तो यहां पे हमने 2 पाई r प्लस h अपॉन v नॉट कर दिया. गेटिंग? देन यहां पे हमें टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई r प्लस h अपॉन v नॉट. देन यहां पे हमने यही दिखा रखा है वेयर r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट विच इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h. नाउ v नॉट की वैल्यू हमने पीछे देख ली, v नॉट इज अंडर रूट ऑफ gm बाय r प्लस h. सिंपली वो यहां पे सब्सटीट्यूट करी v नॉट की जगह पे. ओके, देन ये r प्लस h बाहर है, ये अगर रूट के अंदर ले जाना है, सो व्हाट वुड हैपन इज the square of this r plus h would go inside this root. So यहाँ पे हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ r plus h का क्यूब अपॉन gm. ओके, देन t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट r plus h का क्यूब अपॉन gm. व्हाट इज gm? gm की वैल्यू अभी देखी थी हमने, स्मॉल g इंटू कैपिटल R स्क्वायर. बस gm की जगह पे वो सब्सटीट्यूट किया. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड. ओके, बट अगेन वही वाली चीज यहां पे भी व्हाट यू कैन डू इज, इफ इन केस सैटेलाइट इज नियर बाय, तो r प्लस h को आप r से रिप्लेस कर सकते हो. ऊपर क्या आ जाएगा? r क्यूब और r स्क्वायर में से r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r बचेगा. सो इट कैन बी रिटन एज 2 पाई अंडर रूट r बाय g. तो इफ इन केस सैटेलाइट इज नियर बाय द अर्थ लाइक 100-200 किलोमीटर्स का ही अगर वैल्यू हो h की, तो यू कैन रिप्लेस इट बाय r एंड यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. जनरल फॉर्मूला इज दिस. ओके, एंड मेजर फॉर्मूला इज दिस वन. ओके, ये मोस्टली काम में आएगा 2 पाई अंडर रूट r बाय g, बट दिस इज द जनरल फॉर्मूला. एंड रिमेंबर वन थिंग, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे ये भी कई बार काम में आएगा अगर हमें मास निकालने के बारे में क्वेश्चन दिया जाए. रिमेंबर, जब भी whenever you are watching the video, just mark the important points. Okay, see, so point is कि ये वाला जो फॉर्मूला है, it can be given to you to calculate the mass. टाइम पीरियड दे दिया किसी सैटेलाइट का और बोल दिया कि कोई प्लैनेट है उसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है और उसका मास निकालने बोल दिया, तो you can use this formula over there. Okay, so this is about time period of a satellite. Next we have energy of a satellite. Energy of a satellite मतलब when a satellite is in rotational motion, what would happen is energy कैसे निकलेगी? You remember how do we find out the energy when we are talking about rotational motion? Kinetic energy. Kinetic energy क्या होगी? हाफ m v नॉट स्क्वायर. v नॉट क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट है. सो उसकी वैल्यू उठा के डाल देंगे हम यहाँ पे. व्हाट इज v नॉट? अंडर रूट ऑफ gm बाय r. ओके, एंड यहाँ पे एनर्जी में अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो we'll get half m gm by r which is 1/2 gmm by r. Okay, so this is kinetic energy. What would be potential energy? Potential energy भी तो होगी उसमें, रोटेट कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है. ठीक है, इट इज ट्रैवलिंग वर्टिकली ऑल्सो. वर्टिकली मतलब एक यहाँ था ऑब्जेक्ट, यहाँ से अगर यहाँ आया तो हाइट कम हुई. गेटिंग द लॉजिक? सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस gmm by r. Now total energy, kinetic plus potential, so it would be 1/2 gmm by r minus gmm by r. So total energy हो जाएगी minus 1/2 gmm by r. Getting? बहुत easy concept है, simple. Kinetic energy half m v नॉट स्क्वायर, v नॉट की वैल्यू पुट की 1/2 gmm by r. पोटेंशियल माइनस gmm by r होती है, पीछे देख लिया हमने. सिंपल, दोनों को ऐड करेंगे. 1/2 पूरी वैल्यू तो सेम है, 1/2 माइनस 1 कितना होता है? माइनस 1/2, तो यहाँ पे आ गया माइनस 1/2 gmm by r. That's the total kinetic, total energy of a satellite in any particular orbit. Okay, now इतनी एनर्जी लेके अगर एक सैटेलाइट चल रहा है, मीन्स सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड, रोटेटिंग अराउंड अ प्लैनेट और समथिंग, सो इट इज हैविंग एनर्जी लेट्स से E. यहाँ पे हमने देखा कितनी एनर्जी है, उसको E मान लेते हैं हम. सो अंडरस्टैंड, इफ यू नीड टू रिमूव दैट सैटेलाइट फ्रॉम दैट ऑर्बिट, अंडरस्टैंड, एक बॉडी है उसके पास E एनर्जी है, अगर आपको उसको हिलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाउ मच एनर्जी वुड यू नीड टू वुड बी नीडेड टू रिमूव दैट पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस? जितनी एनर्जी वो स्टोर करके बैठ रहा, उसी का ऑपोजिट आप दे दो. इफ इट इज if it is holding 10 joules of energy, then if you need to remove it from that particular place, you need to give a minus 10 joule of energy. Getting the logic? तभी तो टोटल एनर्जी वो 10 जूल एनर्जी होल्ड करके बैठा हुआ है. सो हाउ मच एनर्जी वुड यू बी गिविंग इन टू रिमूव इट फ्रॉम दैट प्लेस? अंडरस्टैंड? सो क्यों कंसेप्ट इस बारे में बात कर रहे हैं हम? क्योंकि नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिलेटेड टू इट. सो रिमेंबर, एक सैटेलाइट व्हेन इट इज इन ऑर्बिट, सो द टोटल एनर्जी इज minus 1/2 gmm by r. ओके, ग्रेट. नेक्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ or any planet to infinity
इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, मतलब उस ऑर्बिट में से निकालने के लिए. सो द टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी देख लिया हमने, -1/2 GMM/r. तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. गेटिंग द लॉजिक. अभी जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा था, लाइक व्हेन यू नीड टू रिमूव, सो यू नीड टू गिव दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी. अंडरस्टैंड. सो उतनी एनर्जी अगर वो होल्ड करके रख रहा है, इतनी एनर्जी है, तो आप उतनी एनर्जी नहीं देंगे तो यू वुड नॉट बी एबल टू रिमूव इट फ्रॉम द ऑर्बिट. सो इट वुड बी नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इतनी है तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसका पॉजिटिव, दैट इज GMM/2r या 1/2 GMM/r. दैट्स इट. गेटिंग द लॉजिक. ओके. सो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी and that was the total energy. Okay, great. Next we have escape velocity. What is escape velocity? This is a very important concept. इसके ऊपर numericals आते हैं exam में. So escape velocity on earth is the minimum velocity with which a body has to be projected vertically upwards from the earth's surface so that it just crosses the earth's gravitational field and never returns. Understand? Escape. It escapes. What is escape velocity? Escape ऐसे समझो कि like if you are at your home in lockdown and suddenly the announcement comes up that yeah, lockdown is over. So what would be the minimum velocity with which you would be running outside? Getting? So उसी तरह से point is escape velocity on earth is the minimum velocity with which a body has to be projected vertically upwards from the earth's surface so that it just crosses the earth's gravitational field and never returns. Okay. अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए. गेटिंग द लॉजिक. समवॉट रिलेटेड कंसेप्ट है उसी से. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगी, लेट्स से उसके बाद एस्केप वेलोसिटी है VE. सो दैट एनर्जी शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी. गेटिंग द लॉजिक. जो पोटेंशियल एनर्जी है अगर उसके बराबर नहीं हुई, सो हाउ वुड इट क्रॉस द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. उसे ओवरकम करना पड़ेगा अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को. सो इट नीड्स एनर्जी विच इज इक्वल टू अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. Getting? Not Earth's gravitational potential energy, the potential gravitational potential energy of that particular object as it is on the Earth. Okay. So we need to equate half mVE square equals to GMM/r. Okay. इन दोनों को equate कराएंगे तो we'll get VE square equals to 2 GMR and we'll get VE equals to under root of 2 GM/r. Okay. And we know that G equals to GM/r square. So GM की वैल्यू वापस से इसमें जब पुट करेंगे, so we'll get VE equals to under root 2gr. So this is basically the escape velocity. Escape velocity, you got it. Like if we need to give a minimum velocity to any object so that it just crosses the Earth's gravitational field. Okay, वो कितनी हो जाएगी, under root 2gr. ओके. सो यू कैन पुट इन द वैल्यूज एंड जैसे जैसे ये r की वैल्यू अगर किसी और प्लैनेट के लिए भी निकालना हो तो बस ये r की वैल्यू चेंज करनी है एंड यू कैन फाइंड आउट द एस्केप वेलोसिटी फॉर एनी पर्टिकुलर प्लैनेट. सो अर्थ के लिए इट इज समवॉट अराउंड 11.2 किलोमीटर्स पर आवर और समथिंग. I don't remember the exact value. You can find it out. It would be given in your books. So it is under root 2gr. Okay. Formula is this. ये calculation में हमारे काम आएगा. Okay. Great. Next topic is weightlessness. Weightlessness. Understand the word weightlessness. If you have seen movies related to space, जहाँ पे आपने देखा होगा कि स्पेस क्राफ्ट्स में जब लोग ट्रैवल करते हैं, लाइक व्हेन दे ट्रैवल इन रॉकेट्स, सो व्हाट हैपेंस इज दे आर जस्ट फ्लाइंग हियर एंड देयर, थिंग्स आर जस्ट फ्लोइंग इन द एयर. सो दैट इज समवॉट रिलेटेड टू वेटलेसनेस. ओके. व्हाट हैपेंस इज it is a situation in which the effective weight of the body becomes zero. Okay, it is a situation in which the effective weight of the body becomes zero. Now effective weight, remember laws of motion में हमने पढ़ा था effective weight क्या होता है. एक लिफ्ट है, लिफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लिफ्ट नीचे जा रही है. इफेक्टिव वेट क्या रीडिंग आएगी उसकी वे मशीन पे, वेइंग मशीन पे क्या रीडिंग आएगी उस बारे में, अपेरेंट वेट के बारे में हमने बात की थी. So you can just recall that and you would understand that. So कब होता है वेटलेसनेस, कब अचीव होती है कि इफेक्टिव वेट ही जीरो हो जाए? इट इज अचीव्ड ड्यूरिंग अ फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी. ड्यूरिंग अ फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, उस टाइम पे वेटलेसनेस अचीव होती है. इनसाइड अ स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट, जैसा मैंने बताया आपको, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. सेंटर ऑफ द अर्थ क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ पे ग्रेविटी पे अफेक्ट पड़ता है. गेटिंग? सेंटर ऑफ द अर्थ पे जाके ग्रेविटी जीरो हो जाती है.
नो ग्रेविटी, नो वेट. वेट क्या होता है? mg, g जीरो हो गया, दैट्स इट, नो वेट. सो व्हेन अ बॉडी इज लाइंग इन अ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ठीक है, इफ द बॉडी इज लाइंग इन इट, तो इफेक्टिव वेट वुड बी जीरो. सो दिस इज व्हाट इज weightlessness. Okay, just remember the topic, you should understand that. Okay, these are the terms which we are going to use. So this is all about this chapter. I have discussed the important formulas. You just need to go through them, go through the derivations properly, and if in case any doubt occurs, then we'll discuss in the doubt session. So for right now, you can open your NCERT books and we'll discuss the questions from them. Okay, so you can open your NCERT textbooks and open page number 192. Okay, on this we have example 8.3, page number 192, example 8.3. The question is, find the potential energy of a system of 4 particles placed at the vertices of a square of side L. Also obtain the potential at the center of the square. Okay, so you can see this is the square, the length is L, and सेंटर पे जब हमें पोटेंशियल फाइंड करना होगा तो दिस डिस्टेंस ऑफ एवरी मास वी हैव टेकन एज आर. ओके, ये सेंटर है स्क्वायर का, सो बेसिकली दिस इज आर, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो आर. ये लेंथ है कितनी वो हम देखेंगे जब हमें पोटेंशियल निकालना होगा. अभी वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी. वी हैव सीन द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इट इज माइनस नेगेटिव ऑफ GMM बाय आर. ओके, GMM बाय आर. सो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, सो अंडरस्टैंड, यहाँ पे मैंने मासेस को नंबर दिया है. दिस इज 1, 2, 3 and 4. These are all, the value of the mass is small m only, but these are placed at 1, 2, 3 and 4 positions. Okay, so the energy, how to calculate potential energy? See, first we'll calculate between 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 1. See, there are pairs. इन दोनों के बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों में भी है, इन दोनों में भी है, इन दोनों में भी है, एंड ये और ये इन दोनों में और इन दोनों में भी है. गेटिंग? सो पेयर्स, देयर आर 6 पेयर्स बेसिकली, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1. ये तो हुए 4 पेयर्स जो लेंथ्स पे हैं. फिर डायगोनल्स पे भी हैं. गेटिंग द लॉजिक? सो दीज 2 पेयर्स आर ऑन डायगोनल्स, जिनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रही है. ठीक है, सो वी नीड टू ऐड ऑल ऑफ देम. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दीज मासेस 1, 2, 3 एंड 4, तो इनके बीच का डिस्टेंस तो हम L ले सकते हैं. बट व्हाट अबाउट द डायगोनल? सिंपल, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर की लेंथ कितनी होती है? इट इज √2L. गेटिंग द लॉजिक? सो इस केस में जब ये डिस्टेंस लेंगे तो यू नीड टू टेक इट एज √2L. हाउ टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी? सिंपल फॉर्मूला, माइनस GMM बाय L. मास सेम है तो GM स्क्वायर कर सकते हैं, बट GM स्क्वायर बाय L कब कितने केसेस में आ रहा है? 4 केसेस में, 1, 2, 3, 4 ये वाले पेयर्स में. बाकी के 2 पेयर्स में डिस्टेंस कितना आ रहा है? √2L. तो 2 पेयर किसके बनेंगे? √2L के. What you need to do is add both of them, but just don't remember, forget this negative sign. Remember this negative sign always, as it is potential energy. अभी देखा हमने फॉर्मूला. Okay, now if we talk about finding out potential at the center, इस सेंटर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल फाइंड करना है, so what we need to do is, इस मास की वजह से भी, इस मास की वजह से भी, इस मास की वजह से भी और इस मास की वजह से भी डिस्टेंस कितना लेंगे? ये R. ये R कितना है? इस पूरे डिस्टेंस का हाफ, यानी कि R becomes equals to √2L by 2. यानी कि इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं L by √2, R की वैल्यू. गेटिंग? सो पोटेंशियल इट वुड बी माइनस GM by R. पोटेंशियल वुड बी माइनस GM by R. तो R कितना हो जाएगा? L by √2. सिंपल, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक मास की वजह से. गेटिंग द लॉजिक? सो दिस वुड, ये √2 को आप ऊपर लिख सकते हो, सो इट वुड कम आउट टू बी माइनस 4√2 GM by L. Simple. Getting the logic? Okay, let's go to the next one. Okay, so open page number 195. Okay, on this we have example 8.5. Now in this example basically there are things related to Kepler's laws, so you can skip that part, and the previous part, the first part, you can just go through the first part. It says that the planet Mars has 2 moons, Phobos and Deimos. Phobos has a period 7 hours 39 minutes and an orbital radius of 9.4 into 10 is to the power 3 kilometers. Now it says that calculate the mass of the Mars. Okay, this is the first part. Then we have assumed that the Earth and Mars move in circular orbits around the Sun
with the Martian orbit being 1.52 times the orbital radius of the Earth. Now it says what is the length of the Martian year in days. So for that we need to use Kepler's laws. So you can skip this part, but you need to understand how do we calculate mass in this. Okay. So I'll just explain it to you, and then I'll help you with the next numerical, which is also of the same type. Okay, so see here, we have this formula t square equals to 4 pi square upon gm r cube. ये कहाँ से आया, ये confusion कई लोगों को हो रहा होगा, सर ये कैसे, कहाँ से, क्या. So remember अभी हमने time period पढ़ा है और उसका that satellite का time period क्या होता है. So point is ये हमने अभी देखा t equals to 2 pi अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम. मैंने बोला था दिस इज द मेजर फॉर्मूला. उसमें हम इसको रिप्लेस कर देते हैं जी आर स्क्वायर से, दैट्स टोटली फाइन, बट एक्चुअल फॉर्मूला तो यही होता है. मैंने कहा था मास कैलकुलेट करने के केस में वी वुड बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, रिमेंबर. सो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो वील गेट टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, एंड ये तो रूट में है तो इसका तो स्क्वायर ऐसा कैसा हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन gm. बस कुछ भी नहीं किया, टाइम पीरियड के फॉर्मूले का स्क्वायर कर दिया, एंड देन ये जो m है इसको रिप्लेस कर दिया हमने t स्क्वायर से, एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ m. सो सिंपली यू नीड टू पुट इन द वैल्यूज. 4 पाई स्क्वायर, r की वैल्यू आपको दी हुई है, g की यू नो, एंड t भी आपको दिया हुआ है. सो यू जस्ट नीड टू पुट इन द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर. नथिंग मोर देन दैट. ऐसे आता है ये वाला फॉर्मूला. ओके, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं. ओके, सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज, इट्स वेरी इजी. Okay, I'll show you the next numerical. Next is this one, 8.6, same page 195. It says you are given the following data, and what we need to calculate is obtain the mass of the Earth in 2 different ways. Okay, great. So the first one is the formula. You can see it is the formula is related to mass, that is m equals to, it is the same, gm equals to gr square. Okay, I'll explain it to you. So the first formula which we are talking about is, यहाँ पे मैंने आपको बताया था we replace gm by gr square, if you remember. Okay, we replace, ये replacement हम करते हैं, ये हमें कैसे मिलता है, I hope it is clear to you. small g का formula होता है gm by r square. इससे हमारे पास आता है gm equals to gr square. Okay, so the same thing is used in this. Just go through the books while I am solving this for you. और इसको solve कैसे करेंगे? Simply they have written as me, that is mass of earth will be equal to g into radius of earth का square upon capital G. Simple. इस g को इन्होंने यहाँ पे replace किया हुआ है. Okay, you can put in the values and you will get the mass of the earth. Okay, next on the next thing what they are saying is that the moon is a satellite of the earth, and from the derivation of Kepler's third law, again they are discussing about Kepler's third law, so you need not to do that part. You just need to understand कि अगर mass find करने के लिए question कभी भी आता है तो this would be the formula which we would be using. Okay, so just remember this time period का formula. This you might be using this in other examples also. Okay, great. Next we have example number 8.7 on the same page 195. It says express the constant k of equation 8.38. Okay, 8.38 equation, ये पेज नंबर 194 पे इक्वेशन दे रखी है, यही वाली इक्वेशन है हमारी टाइम पीरियड की. Equation number 8.38, 194 on the right side you can see there are equations 8.33, 8.34. So उसमें 8.38 में जो constant है k, which is 4 pi square upon gme, ये जो constant part आता है इसमें भी हमने कई बार देखा अभी, ये 4 pi square upon gm, इसके बारे में ये पूछ रहा है. Express the constant k in days and kilometers given k equals to this and moon is at a distance of this kilometers from the earth. Obtain its time period of revolution in days. So it's just about calculation. Go through this numerical, and if in case you find any trouble, we'll discuss in the doubt session. Okay, so this is about gravitation. Just go through the video and try these questions. Thank you.